Students online, please let me know whether you can hear me. Please write your message. This is okay. Could you call somebody from there? Huh? Oh, they can hear. Okay. So shall we begin? You are going to appear for the judicial examination. Is this your first attempt? Yours is first? First attempt. Yours? First. About you? This is your second attempt. Now, where did you pass your law from? Please keep sitting. Huh? Okay. How about you? Himachal Pradesh University. Now, before I give the orientation lecture, let me make a few things clear. That there are something like 1,800 law schools in the country. Get that? 1,800, including private universities, private law schools, government universities, private universities, government law schools, and the annual intake is approximately in the range of 6 lakhs. So 6 lakh law graduates of law, they pass out every year. And among these 18 law schools, there are varying standards. Some are very good, like national universities. Some are good, like our UILS in Punjab University, from the good institutions. Some are just average. Majority of them are absolutely poor. Are you getting the point? So you are here because whatever time you spent law schools, that has by and large been a wastage. Because you are neither being taught well, faculty so poor, students too by and large are not very serious. And your purpose in law school is to pass the law examination. Am I right? So you have a number of deficiencies. Deficiencies very large, which you will try to make up through coaching classes. Had you spent your time well, had you studied very hard, you would not be here today. For this coaching, I understand you are spending good amount of money. That money, in fact, would have been saved. And you had no rights to use this money of parents, which is hard earned. You are spending it because you did not work hard earlier. I'm being very frank. So your deficiencies are, number one, that you have only peripheral, basic knowledge of law. Not even basic. Let me be very frank. You are law graduate, but you do not have even basic knowledge of law. Do you agree? Like, for example, if I ask you simple, very simple questions, which a 8th standard student should answer, probably you shall not be able to do it. Like, for example, if I ask you, what do you mean by sovereign? The preamble. Sovereignty. Secularism. Socialism. All these words are there. Or come to the basic concept. What is a state? ये तो definition आप शुरू से करते रहे होंगे ना? Right from the beginning. From school days. If I ask you what is state? And what is the difference between state and society? Are these the same? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ. What is a state? बताइए, आप बताइए.
ये तो रोज अलिफ से पढ़ते रहो ना, बेसिक क्लासेस से। भाई स्टेट क्या होती है आप बताइए, यू अटेम्प्ट, व्हाट इज स्टेट? यस, ट्राई टू, दैट्स राइट। पार्डन? बिलोंग तो आप बहुत चीजों करते हैं। बिलोंग, यू बिलोंग टू द फैमिली, you belong to the community, you belong to the society, you belong to the nation, you belong to the state, you belong to world community. So belongingness has nothing to do with this. And you may belong to a state, you may not belong to a state. There are persons who are stateless, who have no states. They are stateless human beings. दुनिया भर के रिफ्यूजी मारे मारे फिर रहे हैं दुनिया में, जाए उनकी कोई स्टेट नहीं. So relationship does not define it. आप बताइए. But keep sitting. State is a part of a country where the person resided over there. No, part of a country. What do you say? A nation or a country. With so many. Now you have opened Pandora's box. I'd ask you, what's a nation? What nation is? Okay, nation. I have answered about this. Nation is a country where are so many persons who are resided of different caste and culture, and it's called a nation. No. Are we a nation? No. Is India a nation? All the states include. Yeah. No. Are we a nation? We are not a nation. We are just a citizen of India. No, citizen is okay. But I said, is India a nation? Country. That is a nation. बेटे मैं पूछा, is India a nation? Because you use the word nation. देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को वो पता नहीं है जो एक तीसरी क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए. Now look, you must have lived in a long time, but recall it now. Nation, say, a state is a political association of persons. Political association which must satisfy the following conditions. One, population. कोई स्टेट पॉलिटिकल नहीं हो सकती. Two, it has defined territory. Without it, there can't be a state. Do you agree? Three, it must have organized government. And fourth, it must have sovereign independence. You can follow any policy, internal, external. You are independent. You are sovereign. So any association of people which satisfy these four tests is a state. ये डेफिनेशन आपने की होगी तीसरे चौथे दर्जे में स्कूल के अंदर. अब ये भी आपको पता नहीं. अब now when you talk a state can be a nation state. A state can be a no-nation state. ये जरूरी नहीं और स्टेट नेशन ही हो. Nation is a community, any community, which is united by common factors like same religion, same culture, same language, same ethnicity, racial origin, and same way of life. Germany is a nation. France is a nation. Japan is a nation. Because this community is homogenized by all these common factors. तो इनको कहते हैं nation states. दूसरी स्टेट वो हैं जो नेशन स्टेट नहीं है. They are not nation states. India is not a nation state. We are a state, we are not a nation. यहां तो 50 communities हैं, different racial groups, hundreds of languages, hundreds of religions, hundreds of ways of life, cultures, customs, usages, practices. तो हमारा कंट्री नेशन स्टेट नहीं है. हम स्टेट हैं लेकिन नेशन स्टेट नहीं है. अमेरिका इज नॉट ए नेशन स्टेट. वहां पे हिस्पैनिक्स भी हैं, वहां पे इंग्लिश भी हैं, वहां पे नीग्रोज भी हैं, अफ्रीकन भी हैं. इज ए मल्टीनेशनल स्टेट. चाइना इज ए मल्टीनेशनल स्टेट.
इंडिया इज मल्टी नेशन स्टेट, ये सारी बहुत से नेशंस इसके अंदर हैं। अब बताइए व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए बंगाली एंड ए पंजाबी, क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए पंजाबी एंड ए तमिल और ए केरलाइट? कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्री? उनका खाना पीना, रहना, बिलीफ सिस्टम, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, सभी को डिफरेंट है। सो वी आर ए मल्टी नेशन स्टेट, ये होता है नेशन कंसेप्ट। और ये है, ये डेफिनेशन आपने कर ली, चलिए दूसरे तीसरे दर्जे में, जो आपको याद नहीं आज है। But then the difference in nation is between state and a community, society, general society. हम कहते हैं state is a political association, यही डिफाइन करते हो ना। Why do you call it political? कभी सोचा है पॉलिटिकल क्यों है? नहीं सोचा, बस ये कह जिसमें 4 कंडीशन पूरी हो गई स्टेट बन गई, यही पढ़ा है ना। Any community that satisfies 4 tests is a state. But you never try to know what do you mean by political association. Political means, ये nothing to do politics, इसमें politics कहीं नहीं आती है। Political means artificial, man-made. States are created. State don't grow on trees. आप समझ रहे हैं? State अपने आप पैदा नहीं होती, State बनाई जाती है। क्यों बनाई? प्रेम्बल देखिए, कौन है प्रेम्बल? क्या कहता है? We the people of India, हम हिंदुस्तानी, हम सब लोग, we solemnly resolve to establish India, Union of India, that is Bharat, for following purposes. टेम्पल तो पढ़ा है। To guarantee to everyone justice, political, social, economic. ये है ना पहला पन्ना कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है? That we have established a state with following objectives. तो हमने हिंदुस्तान की स्टेट बनाई है इन पर्पस को अचीव करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं, तो बनाई है ना। एंड वट एवर यू क्रिएट, जो भी आप बनाते हैं, यू डू टू द पर्पस। बगैर पर्पस के आप कोई काम नहीं करते। हर काम के पीछे कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। दैट इज वाई स्टेट इज पॉलिटिकल, इट इज आर्टिफिशियल, इट इज नॉट नेचुरल। स्टेट अपने आप नहीं बनती, स्टेट बनाई जाती। ये तो एग्री करते हो ना? बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान टूट के फिर बन सकता। हिंदुस्तान एक था, कई स्टेट बन गई। स्टेट बनती रहती है, गिरती रहती है, टूटती रहती है, लेकिन हर दफा बनानी पड़ती है। अब समझिए स्टेट का कंसेप्ट। नाउ बेसिक डिफरेंस विद सोसाइटी एंड स्टेट। हम यहां 4 लोग बैठे हुए हैं। आर वी ए सोसाइटी? आर वी ए स्टेट? तो सेकंड आंसर तो आप बिल्कुल सही कहेंगे कि नहीं, हम स्टेट नहीं, वी आर नॉट स्टेट, बट सोसाइटी वी आर। Whenever 2 or more individuals meet, society is formed. सोसाइटी बन जाती है, आपको बनानी नहीं पड़ती, सोसाइटी अपने आप बनती है। क्यों? हमारे हर एक के अंदर इंस्टिंक्ट है, नेचुरल अर्ज है टू लिव टुगेदर। ये इंसानी फितरत है कि इंसान आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको दूसरे इंसान की कंपनी चाहिए। ये नेचुरल है। Out of 18 instincts, one is instinct of gregariousness, living together. जो आदमी अकेला रह सकता है वो इंसान नहीं है, या तो वो शैतान है। शैतान को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। Devil doesn't require anybody's company. या तो शैतान हो गया वो, या फिर वो क्या कहते हैं हिंदी में, या फिर देवता, सेंट। साधु को, सेंट को जिसने समाज छोड़ दिया है, उसको ह्यूमन कंपनी की जरूरत नहीं है। बैठ गया हिमालय में जाके, अकेला रहता, उसे किसी की जरूरत नहीं।
is not normal human being. Normal human being must have company of another human being. उससे बगैर आप इंसान जिंदा नहीं रह सकते. एक केस था सुनील बत्रा 78 का. इट वॉज कमेंट ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. जिसको एक कोठे में डाल दिया, अकेले डाल दिया ना. सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यू अंडरस्टैंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक कोठे में डाल दिया, कट आउट फ्रॉम ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप. खाना फेंक देंगे एक मोरी से छोटा सा और आप बंद कर देंगे, उसके बाद आपके साथ कोई इंसान कोई कांटेक्ट नहीं होगा. सॉलिटरी, यू आर ऑल अलोन. सुप्रीम कोर्ट कहती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट डेथ पेनल्टी से बदतर है. डेथ पेनल्टी से बदतर है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. आप सोच के देखिए कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कोई आदमी आपके कांटेक्ट में नहीं. हर आदमी थोड़े दिन बाद या उससे और थोड़े दिन बाद वो पागल हो जाएगा. वन गो मैड. किसी को थोड़ा टाइम लगेगा, कि थोड़ा सा और ज्यादा लग जाएगा, लेकिन वो पागल जरूर हो जाएगा. He will go mad because you can't live a lonely life. तो सोसाइटी क्या है? Whenever human beings come together, interact, a society is formed. सोसाइटी बनानी नहीं पड़ती, सोसाइटी खुद बन जाती है. आप समझ गए? That is why society is natural, state is artificial. स्टेट बनानी पड़ती है, समाज को बनाने की जरूरत नहीं, समाज तो अपने आप बनता. Why I gave the example कि मैं आपसे वो एलिमेंट्री कंसेप्ट पूछूं जो आपको चौथे या पांचवें दर्जे में पता होना चाहिए, वो भी आज आपको पता नहीं. आई डोंट डिस्करेज यू. ये डेफिशिएंसी आपकी है तो इसके कई कारण हैं. टू ए लार्ज एक्सटेंट यू आर रेस्पॉन्सिबल, टू ए ग्रेट एक्सटेंट योर टीचर रेस्पॉन्सिबल. आप समझ बात मेरी? इन लॉ स्कूल टुडे 90% फैकल्टी इज इनकॉम्पिटेंट टीच. वो उसले लोग हैं जिन्हें मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर लगाऊंगा. ना उन्हें कम्युनिकेशन आता, ना वो अंग्रेजी बोल सकते, ना उन्हें लॉ का आइडिया है, ना अच्छी तरह पढ़ा सकते. तो जब टीचर आपके ऐसे होंगे तो फिर टीचर्स का जो स्टूडेंट का हाल होगा वो आप समझ सकते हैं. टीचर भी नहीं. अब क्लास में टीचर जाता है, इट हैपेंस इन यूनिवर्सिटीज. मैं थर्ड रेट लॉ स्कूल बात नहीं कर रहा हूं. ही डजंट वांट टू टीच, सो गो एंड से लुक क्या मूड है. बच्चे भी समझ गए मूड का पढ़ाने का नहीं है और मूड हमारा पढ़ने का नहीं. तो कहते हैं सर मूड आपका पढ़ाने का नहीं है और मूड हमारा पढ़ने का नहीं है. लॉ की कैंटीन में गरम गरम समोसे बने हुए हैं, तो सर समोसे और चाय काट लेंगे. एनी टाइम व्हेन क्लास इज ऑन 50% बच्चे बाहर बैठे हुए. क्लास में जाते ही अटेंडेंस भरवा ली, रिक्वेस्ट कर ली, कुछ और कर लिया, कुछ गेम्स पार्टी दिखा दिया, कुछ ये किया मैंने वो किया, और पूरी पारी करके इम्तिहान में बैठे. और वो तो पढ़े नहीं, डिग्री मिल गई. दिस इज व्हाट इज लाइक. नाउ जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आज बच्चों की कितनी फर्स्ट डिवीजन आती है? अबाउट 1/3. अगर 100 बच्चे हैं तो हो सकता 30 बच्चों की फर्स्ट डिवीजन हो, और ऊपर नजर नहीं आता है. मैं एम LLB फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. आई एम द टॉपर एंड आई एम सेकंड डिवीजन. फर्स्ट डिवीजन एक भी नहीं थी. Those were the standards. And that university was known as Cambridge of India, लॉ के मामले में. आज आप देखिए हर बंदा डिग्रियां लिएगा था, डिग्रियां लिए पता नहीं हजारों घूम रहे हैं, बट नोबडी वुड गिव देम ए जॉब वर्थ 5,000 रुपीज. अगर 6 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं लॉ में हर साल, तो उनको कौन नौकरी देगा? दे डोंट डिजर्व 5,000 रुपीज अ मंथ.
आजकल आपके एमबी, आपके इंजीनियर्स, आपके डॉक्टर्स, आपके लॉ ग्रेजुएट सड़कों में घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही, वो नौकरी लायक ही नहीं। और ये रिसर्च है, ये मेरा कहना नहीं है। 85% ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन, दे आर नॉट फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। वो नौकरी के लायक ही नहीं है। ये नहीं कि लोग अवेलेबल नहीं, अवेलेबल बहुत है, नौकरियां भी अवेलेबल है, लेकिन नौकरी के लायक नहीं। सो दिस व्हाट इज लाइक। सो यू आर हियर बिकॉज यू हैव ए ग्रेट डेफिशिएंसी। अब उसको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू कोचिंग क्लासेस। अगर यही टाइम आपने पढ़ाई में बिता लिया होता तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। Nevertheless, see, done is done, it can't be undone. Time gone is gone, that will never come back. So let's take an oath now कि अब आप आगे मेहनत से काम करेंगे। If you want to be somebody in life. Otherwise, हिंदुस्तान में millions of jobless graduates are roaming around. Millions of them. कोई जेब काट रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई मोबाइल छीनता है, कोई चेन तोड़ता है, कोई चोरी करता है। क्या करेंगे? रोटी तो खानी है उनको। They have nothing to do. डॉक्टर्स पकड़े गए, इंजीनियर पकड़े गए, लॉ ग्रेजुएट पकड़े गए, जो मोबाइल छीनते हुए चेन तोड़ते पाए गए, कार चोरियां करते हैं, स्कूटर उठाते हैं, मोटरसाइकिल उठाते हैं, बिकॉज देर इज मास अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड। वो नौकरी के लायक ही नहीं है। अब वन इंजीनियर जैसे कि यहाँ पे है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, नाम तो बड़ा अच्छा है, बेवकूफ बनाने के नाम भी रखा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, हालांकि चंडीगढ़ में नहीं है ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना चंडीगढ़ में, दिस समवेयर इन मोहाली आई थिंक। तो वहाँ वन ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट ही वाज हेड डिपार्टमेंट, उसने कहा सर एक लेक्चर दे दिया। मैंने कहा भाई मैं प्राइवेट में जाता नहीं, आई नेवर गो टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी मोहाली में बनी है, दे मेड मी प्रोफेसर एमेरिटस, आई सेड नो थैंक यू। मैंने कहा सर हम 60,000 रुपए देंगे आपको पर मंथ, जब चाहिए आप आइए, नहीं अब मत आइए। आई सेड नो, मनी इज नॉट माई, आई विल नॉट कम। आई सेड आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट योर प्रोफेसर एमेरिटस, क्योंकि तुम्हें मेरा नाम जोड़ना है ताकि एडमिशन आए। आप ये दिखाएं कि प्रोफेसर वीर सिंह ऑन द स्टाफ, ये द फैकल्टी मेंबर। आप समझ रहे हैं, ये टीचिंग शॉप्स हैं। सो since he insisted, I went there. One faculty member came as a escort officer with a car. वो मेरे घर पे लेने आ गए। On the way asked him, भाई क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं आई एम लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दिस वाज अबाउट मेरे का 15 साल की बात हो गई। I asked him how much salary do you get? उसने कहा साहब मुझे मिलते हैं 15,000 रुपए। I said look here, my staff car driver, इसकी कैरी ऑन सैलरी 35,000 रुपए है। He carry 35,000 per month home. डिडक्शन भी है, इसको प्रोविडेंट भी मिलता है, इसको मेडिकल भी मिलता है, इसको हाउस अलाउंस मिलता है, इसको दूसरी फैसिलिटीज भी हैं, इसको छुट्टी मिलती है। तुम्हें और कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ 15,000 मिलता है। नाउ ए फैकल्टी मेंबर टीचिंग एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब जो फैकल्टी मेंबर है उसको कपड़े भी डाल के जाने हैं अच्छे, उसके एक्सपेंस होंगे। डू यू थिंक विद 15,000 रुपीज an employee can marry and raise a family or can survive a month? नहीं हो सकता ना। आज भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, when I came to know, when we see UG team visits or bar council team visits, तो वो सारा दिखाते हैं, टीचर पूछते हैं are you being by UC grades? They say yes sir, we are getting UGC grades. I try to find out, क्योंकि मैंने गलती को लोग सेलेक्ट कर दिया वहां पर, I have the selection committee. I asked them how much do you get? Dean and head, जिसकी 18 साल की सर्विस है, जसप्रीत, she is getting 1 lakh rupees. सारे 20 साल से बाद लड़की को सिर्फ 1 लाख रुपए मिलते हैं। I said of others, they get 60,000 rupees. 50, 60, 50, 60 दिखाने को पूरी तरह देते हैं, लेकिन देते हैं आधी। This is what they do in private law schools. So what I'm telling you is that these are teaching shops.
तो बच्चों का कैरियर कहां से बनेगा, पढ़ाई कहां से होगी? दैट्स द प्रॉब्लम। एनीवे, आई हैव टू रेट ऑल दिस टू यू कि आप लोगों को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और यहां आप आए हैं बड़े मोटे पैसे दे के, एंड अर्निंग मनी इज नॉट इजी। सबके पेरेंट्स रिच नहीं हैं, हो सकता है कुछ के हों, रिश्वतखोर हों, मनी बैग्स हों, दुनिया भर का पैसा हो, बट मेजॉरिटी पीपल आर नॉट दैट रिच। उनका बड़ी टफ गोइंग है। वो अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए खुद खाएंगे नहीं, कपड़े नहीं पाएंगे, सेव करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं खर्च करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे आपको सबसे अच्छी एजुकेशन दी जाए। करेंगे नहीं करेंगे? देयर इज नथिंग लाइक इंडियन पेरेंट्स। इंडियन पेरेंट्स, डिवोटेड पेरेंट दुनिया में कहीं भी नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं। आई हैव सीन थिंग्स एल्सवेयर, लाइक फॉर इंस्टेंस, years back there was a Professor Feldsteiner from Yale Law School. आपने सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े लॉ स्कूल्स में एक हार्वर्ड, एक है येल। तो येल के प्रोफेसर फेल्स्टाइनर 15 साल पहले आए थे। आई वाज अटैच्ड एज एस्कॉर्ट ऑफिसर। यूनिवर्सिटी गाड़ी दे, जहां चाहिए घुमाइए, शॉपिंग कराइए, जहां खाना खाना चाहे खाना खिलाइए। सो आई वाज विद हिम फॉर 3-4 days. So I asked him, Professor, what about your family? He says, well, I have only one daughter. I said, what's she doing? He said, I don't know. I said, how come? You have only one daughter and you don't know what she's doing? He says, young man, there is a story behind it. He says, what happened was 15 years back, I'm talking about. One fine day, she comes to me and says, Dad, I've qualified for medical, admission in medical college. And also qualified for admission nursing college. मेरा दोनों जगह में पास हो गई एडमिशन के लिए. And she says, would you finance my medical studies? Because medical studies are very expensive in the US. बहुत expensive है. Professor says, I said, yes, I'll do it. Provided you give me a word that should I need your help in old age, would you help me out? Because I'll be spending my entire savings on education. वहां पर लोग पैसे बहुत ज्यादा बचाते भी नहीं, जो बचाते हैं कहता है मैं सारे खर्च कर दूंगा, लेकिन मुझे एक वर्ड है दो, मैं जरूरत पड़ी, जिंदगी में जरूरत पड़ी ना पड़े, अगर पड़ी तो could you stand a helping hand? And she said, no way, I don't make promises. And she walked away. Professor says, I don't know what that girl is doing, where she is staying. I am not in touch with her for last 15 years. This is what American parents are like. 8 की जांच के बाद वो आपको घर में नहीं रखेंगे. Go and work, earn your tuition fee, pursue your studies. They don't finance. 8वीं के बाद आपको पेरेंट सपोर्ट नहीं करेंगे. जाइए, जो चाहिए करिए, होटल में बर्तन मांजिए, खाना बनाइए, वेटर बनिए, कुछ करिए, बट देन पेरेंट्स वोंट सपोर्ट यू. हमारे यहाँ, एंड यू नो इट, आई एम नॉट कि अगर जरूरत पड़े तो पेरेंट्स कर्ज भी लेंगे. लेंगे कि नहीं लेंगे? पेरेंट्स अपना मकान भी बेच देंगे, अपनी जमीन भी बेच देंगे, अपने गहने भी बेच देंगे. But their effort would be that we should support and get the best education for the children. ये सिर्फ इंडियन पेरेंट्स ही कर सकते हैं, बाहर कोई नहीं कर सकता. So this is the point I am making, that since you are such devoted parents who spend very hard money on you and to see they try to provide the best, कि मेरे बच्चे को सबसे बढ़िया कपड़े पहने, सबसे अच्छी एजुकेशन मिले, सबसे अच्छा खाना मिले, खुद पे खर्चा ना करें वो, लेकिन आपको
और उसकी एग्जाम्पल देता हूं। आई वाज चेयरमैन ऑफ फी कंसेशन कमिटी, लॉ डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। So we consider the applications, invite the students कि भाई आप concession क्यों चाहते हैं? Somebody says 50% concession, somebody says 100% concession. So we interview them. So one handsome young man, young boy, he walks in. He had applied for total fee concession, pura free ship. He was wearing very expensive clothes, top brand shoes, very expensive watch. You don't need any fee concession. You look so rich. I am such a good family. So virtually started crying. He says, sir, मेरी माँ बर्तन रगड़ती है. She scrubs somebody's utensils. मेरे पास एक ही ड्रेस है. वो कहते हैं बेटे जब बाहर निकलो तो प्रिंस से निकलना, किसी को ये पता ना चले कि मेरा बेटा गरीब. This is how parents taught on you. So in return, you owe it to yourself and to your parents that you must take a determination and oath today that you shall succeed in this generation. कि आप उनकी expectations को पूरा करेंगे. Come what may, you will spare no effort and no time. कि आपको succeed होना ही होना. अगर इस इरादे से आप काम करेंगे, then chances are you will certainly succeed. जो बच्चे जुडिशल बने हैं वो आपसे बेटर नहीं, वो भी आप जैसे ही. उनमें कोई खास बात नहीं. उनमें सिर्फ खास बात यह है कि उन्होंने बाकी बच्चों से थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर दी. Now for say 180 posts each in हरियाणा पंजाब. बाकी कुछ जगह ज्यादा पोस्ट भी हैं, जैसे इन यूपी देयर आर समथिंग लाइक 700 जुडिशल पोस्ट. हमारे यहाँ 180 70 हैं पंजाब हरियाणा अलग अलग, 170. बच्चा बैठता है करीब करीब 40,000. So if 40,000 appear and out that 40,000 170 are selected. इसमें से 70 बच्चे सेलेक्ट होंगे 40,000 में से. You can understand competition extremely tough. And even one mark will make the difference. एक नंबर आपका ज्यादा है तो आप जुडिशियल ऑफिसर हैं, एक नंबर आपका कम हो गया तो आप रोड के ऊपर. आप समझ गए? द मार्जिन इज सो थिन. इट्स ए गेम ऑफ वन अपमैनशिप कि आप दूसरे थोड़ा सा बेटर हो जाइए and you'll succeed. You have to work with that motto, with that determination, and therefore don't spare any efforts. See that you are successful in the examination. आप समझ गए मैं क्यों मोटिवेट कर रहा हूं आपको? So first ingredient, see input, जो सबसे पहले आपकी जरूरत है, your will to succeed. अगर आपका इरादा पक्का है, इसका पक्का इरादा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता. वो तो चाय वाले प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. One could go to any heights and read biography of any great man. किसी भी बड़े आदमी की आप उठा लीजिए कहानी, बायोग्राफी. उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत नहीं की. बगैर मेहनत के कोई आदमी बड़ा आदमी नहीं बना, कभी नहीं बना. मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो मनी बैग्स हैं, जिन्होंने डकैती मारी, अफीम बेची, लिकर बेच के पैसे कमा लिए, चोरी कमा लिए, डकैती क्रिमिनल कर लिए, वो की बात नहीं कर रहा हूं. I said anyone who has gone high, he was a very hard working man. ये बड़े लोग 22 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं.
मोदी कहता है मैंने आज तक कुछ छुट्टी नहीं ली, और नहीं ली होगी। 4 घंटे सोता है। He says sleep only for 4 hours. And he's about 70. If I'm not right, approximately 70 होंगे। अभी भी जब पौने पर चढ़ता है, आपने हवाई जहाज में देखा होगा, दूसरे जगह, वो रेलिंग पर हाथ नहीं लगाता। He doesn't take support of railings. वो सीधा चढ़ता है, दौड़ के चढ़ता है, दौड़ के नीचे उतरता है। 70 साल की उम्र में। He is physically so fit. So first thing you do is you give auto saying yourself that I would succeed. अगर आपकी विल है तो रास्ते बहुत हैं, एक तो ये कर दीजिए। You get the point? Second is that you have to have time management. आजकल बच्चों का कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सारे दिन मोबाइल पर लगे रहते हो, सारे दिन टीवी देखते हो, यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। और आजकल ऐसे प्रोग्राम हैं विच लीड्स टू बैड प्रैक्टिसेस, बैड साइकोलॉजी, और एक डिजीज हो गई है। ये भी एक डिजीज है टू स्टिक टू मोबाइल एंड टीवी ऑल द टाइम। तो रात को लेट सोना, पर्सनल हाइजीन कोई नहीं, खाने का कोई टाइम नहीं। खाने में फिर आप जो है यू गो एंड ईट जंक फूड। यहाँ तो भी नहीं है, 36 सेक्टर में जहाँ बहुत ट्यूटोरियल्स हैं, वहां पे 80% शॉप आर ईटरीज। वहां पे खाने की दुकानें हैं। वो सब वो खाना है विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो पॉइजन है वर्चुअली। बच्चे उसी को खाते हैं। घर का खाना है ना, दे विल नॉट टेक पैक लंच नहीं खाएंगे घर से, वो ही खाएंगे। सो यू हैव टू हैव एज अ सेकेंड पॉइंट टाइम मैनेजमेंट। आपके पास 24 घंटे हैं। डोंट इग्नोर एनी एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी पूरी करिए, बट देन हैव ऑर्गेनाइज लाइफ। एक 24 घंटे का चार्ट बना दिए, मन में रखिए, ये नहीं लिख के बनाया आपने, दैट यू विल हैव एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप। 8 घंटे सोना ही है, इससे कम यंग आदमी को नहीं सोना चाहिए। दैट्स द मिनिमम दैट यू नीड, 8 to 9 hours. For old people, it may be 6 to 7 hours, or maybe 5 hours. For you, minimum is 8 to 9 hours. For healthy body and mind, sound sleep for 8-9 hours is mandatory for you. तो वो भी इग्नोर मत करिए। ये नहीं रात के 3 बजे सो रहे हो, रात के 2 बजे सो रहे हैं, कभी कभी तो सो ही नहीं रहे। ये नहीं होना चाहिए। That way you will not keep healthy mind, healthy body. फिर आपका नहीं होगा। So give 8 hours to your sound sleep. Then take care of personal hygiene. कपड़े आपके एक्सपेंसिव ना हो लेकिन साफ हो। डेली बाथ, शेविंग, comb your hair, brush your teeth. जो आदमी गंदा रहता है, पर्सनल हाइजीन निग्लेक्ट करता है, वन ऑफ एमिट फाउल सेल, उस आदमी क्या सक्सेस होगी? What sort of man would be? आप समझ बात मेरी? You see, that is a confidence. If you live neat and clean, that gives you confidence. आप जब नहा के अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी रात की नींद लेते हैं, how smart, agile you feel, how confident you feel. पता है बात सही है कि नहीं? किसी दिन आप सोए नहीं, आप नहाए नहीं, आपने कपड़े, आंखों नींद भरी है, बाहर निकल गए, तो ऐसा लगेगा जैसे यू आर हाफ डेड। आपको खुद ही लगेगा, यू विल फील बैड अबाउट इट। सो योर पर्सनल हाइजीन इन टर्म्स ऑफ क्लोथ एंड पर्सनल केयर, एंड देन गुड होम फूड। हमेशा घर का खाना खाइए, बहुत एक्सपेंसिव ना हो, बहुत रिच ना हो, जस्ट ऑर्डिनरी फूड। घर की दाल रोटी के बराबर दुनिया में कोई खाना नहीं, वही बहुत अच्छा। दैट विल कीप यू हेल्दी, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। सो दिस अनदर पॉइंट, दैट फॉर सक्सेस इन लाइफ you must have a healthy mind and healthy body.
And healthy body, healthy mind can be ensured only if you take personal care. Good food, good habits, avoid certain bad habits. Some people smoke, some people consume liquor, some people take drugs, some people have other addictions like all the time tea, all the time coffee, all the time कोल्ड ड्रिंक्स, जो इतनी खतरनाक है. अगर ऐसी आते हैं तो ड्रॉप कर दीजिए, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है. डोंट पिक अप एनी डे. मोरओवर, you do not have a right to misspend a single penny of parents' hard-earned money. आपका कोई राइट नहीं है कि आप ₹1 भी पेरेंट्स की इनकम का खराब करें. आप समझ गए? So don't spend money on all. Don't waste money on these. These habits will mean a lot of money expenditure and will mean they will destroy your body and mind. तो ये भी इंश्योर कर दीजिए. Then other parts of your life के भाई दूसरे क्वेश्चन भी पूरे होने चाहिए. Social quotient. So relationships. You see, also take a relationship. आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपका फैमिली है, आपके दूसरे लोग हैं, आपका नेबरहुड है. Keep in touch with them. Keep, you see, normal routine social contacts. वो भी रखिए, उन पे टाइम लगाइए. पार्टी में भी जाइए, साथ बैठिए, गॉसिप भी करिए, वो भी जरूरी है. रिश्तेदारों से मिलिए, दोस्त से मिलिए, वो भी जरूरी है. It's very important. Entertainment is also very important. So take care that you get good healthy entertainment and you keep good social contacts. वो भी आपकी माइंड और बॉडी को हेल्दी रखेगा. जो आदमी कट ऑफ है, और आजकल हो क्या रहा है, सोशल कॉन्टैक्ट नाम की चीज खत्म हो गई है. सोशल कॉन्टैक्ट क्या है? मोबाइल. You say, I have 50 friends. I have 100 friends on WhatsApp, through Facebook, chat box. मेरे साथ सैकड़ों दोस्त हैं. लेट मी टेल यू, दोस्त आपका एक भी नहीं. मोबाइल, इंटरनेट प्रोवाइड्स यू कनेक्टिविटी, नॉट रिलेशनशिप. डिफरेंस करिए दोनों में. जिसको आप दोस्ती रिलेशन कहते हैं, रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ कांटेक्ट है, कनेक्शन है. मोबाइल ओनली कनेक्ट्स यू. दिस डज नॉट क्रिएट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. कितनी चीटिंग, कितनी धोखेबाजी, इंक्लूडिंग फेक मैरिजेस, ब्रेन वॉशिंग, क्राइम्स, साइबर क्राइम्स, ये सब भी इंटरनेट के थ्रू होते हैं. रोज पढ़ते हो. सो उसको रिलेशन मत समझिए. सो आजकल हो क्या रहा है कि बच्चे आइसोलेटेड हैं. दे आर कट आउट फ्रॉम द सोसाइटी. दे आर नो कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स. ना तो पेरेंट्स से बात करते हैं, ना टीचर से बात करते हैं, नॉट इवन विद देयर फ्रेंड्स. They are isolated because mobile had done this to them. And now World Health Organization उन्हें recognize किया है. ये recognize किया है World Health Organization that addiction to mobiles is a mental problem. ये एक psychological addiction है, ये बीमारी है. As a consequence, some countries, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स और ऑफिस, उनके अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है. आर यू गेटिंग? आप मोबाइल लेकर ऑफिस नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते. आप मोबाइल स्कूल, कॉलेज में नहीं जा सकते. कीप इट आउट, बिकॉज दिस इज हाउ दे वांट टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम. हमारे यहां ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. बच्चे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब मोबाइल लगे. और उनका क्या आता है? क्राइम्स लाइक सम चिल्ड्रन कमिट सुसाइड. प्रोग्राम आया वेल, ब्लू वेल. दे ब्रेन वॉश यू एंड ब्रेन वॉश यू कमिशन सुसाइड. तो कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि ऐसे कई प्रोग्राम मोबाइल पे और इंटरनेट पे आए. ये तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने. तो ये क्यों है? बिकॉज दे ट्यून योर ब्रेन दैट वे. You are primed
थ्रू दिस टू कमिट सुसाइड। बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे बहुत केसेस आए। फ्रॉड है, साइबर क्राइम से आप रोज देख रहे हैं, लोगों को वार्निंग दी जाती है, लेकिन नहीं, विदाउट केयरिंग आप मोबाइल का, आपके एटीएम कार्ड का, आपका सब कुछ आप यूज करते हैं। एंड डोंट थिंक दैट एनी मैसेज यू हैव सेंट इलेक्ट्रॉनिकली दैट इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। प्राइवेसी नाम की कोई चीज आज नहीं। एक फोन जो आपको आया, एक ईमेल आपको आई, व्हाट्सएप मैसेज आई, अगर उसने आपको खोल के पढ़ लिया, आपने, हो सकता है आपका सारा डाटा माइन हो गया, एवरीथिंग इन द मोबाइल इज गॉन। तो फिर आपके कार्ड, उनके नंबर हैं, उनका ओटीपी है, उनका कोड है, सब कुछ उनके पास है। एंड वन फाइन वर फाइंड दैट योर अकाउंट हैज बीन क्लीन्ड अप। आपके अकाउंट में एक पैसा भी नहीं है। डिजिटल अरेस्ट सुना है ना, रोज पढ़ते हो। ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? लोगों के लाखों करोड़ चले गए, दे आर ब्रेन वॉश्ड। एक आदमी आएगा मोबाइल पे और वो आएगा पुलिस यूनिफॉर्म में, आपके खिलाफ एक चार्जशीट बॉम्बे में फाइल की हुई है, आके आंसर करिए। अब आप बॉम्बे कहां जाएंगे? बताइए साहब, बॉम्बे तो नहीं आ सकता, मैं क्या किया है? ये क्या चार्ज है? ये आपके खिलाफ चार्ज है ड्रग पेडलिंग। अब मैं तो ड्रग से कोई कंसर्न मेरा नहीं है। नो, ड्रग पेडलिंग रजिस्टर्ड है आपकी एफआईआर। जरा टॉक अलोन, जो हम कहें वो करिए, रास्ता बता देते हैं, फिर वो रास्ता बताएंगे, अपने डिटेल दे दीजिए, इतने पैसे जमा कर दिए इस अकाउंट में, एक ओटीपी आएगा, वो ना दे दीजिए। ओटीपी दिया नहीं, आपका अकाउंट साफ हो गया। फिर पता चलता है कि डिजिटल अरेस्ट थी। डिजिटल अरेस्ट, देयर नथिंग लाइक डिजिटल अरेस्ट, इट्स ऑल फ्रॉड। So why is social contact necessary? Because if you keep a social contact with parents, with teachers, with friends, with relations, with neighbors, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, you will get a chance to share them. प्रॉब्लम्स को शेयर करना भी जरूरी है। The stress of your mind and others might help you. आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके दोस्त, आपके रिलेशन आपको हेल्प कर सकते हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम? इफ यू कीप इट योरसेल्फ, प्रॉब्लम्स विल एक्यूमुलेट, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड अल्टीमेटली वन फाइन मॉर्निंग पेरेंट्स को पता चलता है मेरा बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया, मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया, मेरा बच्चा गलत कंपनी में चला गया। डैमेज डन ऑलरेडी। You can't retrieve the child now because you are never in communication with the child. आपको पता ही नहीं था एज पेरेंट्स का आपका बच्चा कर क्या रहा है, because that child never shared his problem with you. हो सकता है इसे प्रॉब्लम रही हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, पढ़ाई लिखाई हो सकती है, दुनिया भर की प्रॉब्लम हो सकती है, उसने नहीं शेयर की आपसे। अल्टीमेटली ड्रिवन टू दैट एक्सटेंट। सो सोशल क्वोशंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So if you keep these quotients in place and prepare a 24-hour chart, division of time, कहां आप कितना टाइम डिवोट करेंगे, और उसको फॉलो करिए बाय एंड लार्ज फॉलो योर डेली रूटीन। ऑर्गेनाइज लाइफ मीन्स सक्सेसफुल लाइफ। डिसऑर्गेनाइज लाइफ इज नो लाइफ। कभी खा लिया, कभी सो गए, कभी घूम लिए, कभी पड़े रहे, कभी कुछ किया ही नहीं, तो फिर ऐसा आदमी लाइफ कोई नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? सो अनदर थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट यू मस्ट हैव ए डेली रूटीन इन प्लेस। पढ़ाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए टाइम प्रेस्क्राइब करिए। वी डोंट रिक्वायर यू, ये कोई नहीं कहता आपको कि आप for success in the examination you must read for 10-15 hours a day. No, it's not needed. 10-15 घंटे कोई आदमी पढ़ नहीं सकता, कोई नहीं पढ़ सकता। और जो कहते हैं 15 मिनट पढ़ता हूं, बकवास करता है, वो झूठ बोलता है। बिकॉज ह्यूमन माइंड वो भी थकता है, फिर वो इट गोज एक्सट्रे।
कंसंट्रेशन नहीं रहती, ध्यान नहीं रहता. So you have to take care of certain things. One, you should know what to read. पढ़ने को बहुत कुछ है, और 90% वो भी है जो पढ़ने लायक नहीं है. You have to learn a lot. You have to unlearn more. Unlearn ज्यादा करना है, learn कम करना है. इतनी इंफॉर्मेशन है, आजकल तो कंप्यूटर है, वेबसाइट्स है, इतनी इंफॉर्मेशन है, और उसमें हो सकता है 90% गलत हो. तो आपको ये पहले देखना है कि आपको पढ़ना क्या है, वो रेलेवेंट फॉर यू. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये कोई आसान काम नहीं है. अब आपकी टेक्स्ट बुक है, हर सब्जेक्ट के ऊपर 4-5 टेक्स्ट बुक है. आपने एक खरीद लिया, आपने 2 खरीद लिया, आपने कहा मैं ज्यादा खरीदूं ज्यादा. नो, यू डोंट हैव द टाइम फॉर ऑल दोस. एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स में थर्ड रेट, वो पढ़ने लायक ही नहीं. तो टेक्स्ट बुक एक सेलेक्ट करिए, सिर्फ एक पर सब्जेक्ट, बट सेलेक्ट द बेस्ट टेक्स्ट बुक. जो सबसे बड़े टेक्स्ट बुक भूल लीजिए, उसके अलावा कोई टेक्स्ट बुक नहीं लीजिए. आप समझे बात मेरी? Don't think that you will read more books, then you will be more knowledgeable and you will more so. No, not absolutely. That's not necessary. So first of all, you should know what to study and what not to study. What to unlearn. ये भी important part है. Management of knowledge is a very difficult task today because knowledge explosion is so big. आप समझ रहे? तो ये भी सेलेक्ट कर लीजिए. Then those who say I read 15 hours a day, वो झूठ बोल रहा है. वो 15 घंटे बैठा है, पढ़ नहीं रहा है. 15 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती. My suggestion to you is, beside class lectures, जो आपके साथ 2-3 घंटे डील होते हैं, then devote another 2 hours, only 2 hours, for self study. 3 घंटे यहां, 2 घंटे घर, just to refresh and to clear your concepts. उन लेक्चर को देखिए, किताब को कंसल्ट करिए, टेक्स्ट को करिए, समझ में आ रहा टीचर से पूछिए. ये जरूरी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एक दफे आपने समझ लिया, आप उसको भूलेंगे नहीं. और अगर आप कर ले साइक्लोस्टाई कराया या वो फोटोकॉपी करा ली, फोटोकॉपी तो करा ली 10 किताबों से, इतना टिल्ला लगा हुआ है, इतना बड़ा हो जाए, ये पढ़ेगा कौन उसको? डोंट डू दैट. सो आई वुड डिमांड स्टडी फॉर अबाउट 5 hours a day. 5 घंटे बहुत ज्यादा नहीं है. Anybody can do it. You agree there? With 5 hours a day, I assure you that you will succeed in examination. 5 घंटे की पढ़ाई से आप you will be absolutely successful. आप कामयाब होंगे. तो इससे ज्यादा नहीं. तो जो आपको बताते हैं नहीं साहब उसने दिन और रात एक कर दी, दिन रात एक करने की जरूरत नहीं है. दिन दिन है, रात रात है, दोनों को रहने दीजिए. So this is another step that you must take. But then this is the rider. Rider is when you start reading something, then read and understand. Don't proceed further unless you have understood what you have read. जो आपने पढ़ा है उसको समझ लीजिए, बगैर समझे आगे नहीं बढ़िए. इट इज नॉट रीडिंग अ नॉवल. आप नॉवल नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया कोई बात नहीं. नो, डोंट मूव ऑन फर्दर अनलेस यू एब्जॉर्ब व्हाट यू स्टडी. उसको एब्जॉर्ब कर लिए, समझ लीजिए. अगर नहीं समझ में आ रहा है, योर इंटरेस्ट फ्लैग्स, डिसइंटरेस्ट हो गए, बोरिंग हो गए, थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, शट डाउन द बुक, पुट इट साइड. उसके बाद किसी और काम करिए, घूमने जाइए, खाना खाइए, दोस्तों के साथ बैठिए, एनी अदर एक्टिविटीज, बट डोंट स्टडी व्हेन योर माइंड इज ऑफ. आप समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है. लाइक इन द क्लासरूम, बी अटेंटिव एंड पार्टिसिपेटिव.
जब तक चीज समझ में आ जाए, लेट टीचर नॉट प्रोसीड फर्दर, आस्क ए क्वेश्चन, क्लैरिफाई, वंस यू क्लैरिफाई यू हैव एब्जॉर्ब्ड इट, फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। छोटे छोटे नोट्स भी ले लीजिए क्लास में, छोटे छोटे नोट्स, नॉट डिटेल नोट्स आर नेसेसरी। व्हेन यू रिफ्रेश देम देन एंटायर क्लास लेक्चर क्लियर टू यू, फिर आपको इम्तिहान में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योर स्टडी। आप समझ गए? दिस अनदर पॉइंट दैट वी वांट टू मेक। नाउ कमिंग टू कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस के बहुत बड़े एडवांटेज है, वो ये है that in LLB they are half-baked faculty, they do not understand that subject themselves, तो आपको पढ़ाएंगे क्या? Here faculty is very competent, we take regular feedback from you। अगर एक लेक्चर भी आपको पसंद नहीं आया, प्लीज टेल द पब्लिकेशन ऑफिसर कि साहब हमें ये लेक्चर इस टीचर का पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया, we shall change the faculty next day, because you are paying money, you are spending your time, you have no right to waste your money and you waste your time, and we ensure, because we also pay and we pay handsomely। अगर हम एक घंटे के लेक्चर के 3,500 रुपए देते हैं, we must exact the value for our students, तो हम टीचर को एकदम चेंज कर देंगे। रेगुलरली गिव द फीडबैक, अपने मैनेजमेंट को रेगुलर फीड दीजिए कि कौन टीचर कैसा कर रहा है, हाउ वेल इज टीचिंग। और एक चीज तय है, लड़का पढ़ाकू हो ना पढ़ाकू हो, पढ़ता हो ना पढ़ता हो, एक चीज में गलती नहीं करता कभी हो, टीचर अच्छा है या टीचर बुरा है, यहां पे वो गलती नहीं करता। यहां पे बगैर पढ़ने वाला स्टूडेंट बता देगा कि ये टीचर अच्छा है, टीचर बुरा है कि नहीं? तो रेगुलर फीडबैक दीजिए अपने मैनेजमेंट को, सो दैट वी चेंज द फैकल्टी दैट इज नॉट अप टू द मार्क। ये भी हम कोशिश करते हैं। सो फैकल्टी लेवल इज वेरी हाई, एंड देन इज इंटेंसिव टीचिंग। आपका पेरिफेरल टीचिंग नहीं है कि आप इम्तिहान पास करें, LLB में पास हो जाएं। We have to ensure that you understand and you perform in the judicial examination. So intensive teaching, हम थोड़ा गहराई पे जाएंगे, will make things absolutely clear to you, but then it comes with a price tag that you must be not only attentive, कि आप ध्यान से सुनिए ही नहीं, समझिए और इंटरवीन करिए। We believe in interactive discussion in the classroom, interactive teaching, participative teaching. Teaching should not be passive. एक है वन जूलियस फ्रायर, he says, हमारी क्लासेस में हिंदुस्तान में जो पढ़ाई होती है, दिस इज लाइक ए बैंक डिपॉजिट। बच्चे का बैंक अकाउंट है, आप कुछ रट के चले गए, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, सेकेंड हैंड है बिकॉज इज नॉट योर, सो दैट नॉलेज यू जस्ट डिपॉजिट अकाउंट। ना उसे पता है आपने क्या डिपॉजिट किया, ना आपको पता है आपने क्या डिपॉजिट किया। इस वन वे ट्रैफिक, व्हाट यू कॉल स्पून फीडिंग, कि सब कुछ टीचर ही कर दे, टीचर पढ़ा दे, हमें मेहनत ना करें। नो, दैट्स नॉट टीचिंग। He calls it is a wasteful narrative. इसका कोई मतलब नहीं। That sort of teaching doesn't lead you anywhere. So teaching must be interactive, participative. From your side, participation is that ask relevant questions whenever you are stuck up, जहां पे समझ में ना आए। आइंस्टाइन नाम सुना? आइंस्टाइन वॉज एन एक्सेलेंट टीचर, वो एक बहुत बढ़िया टीचर थे। सो somebody had asked Einstein, प्रोफेसर आइंस्टाइन हाउ डू टीच, पूछा उससे, बड़ा सादा आदमी था, अगर बेल्ट नहीं मिली तो पुरानी टाई बांध ली।
अगर बेल्ट नहीं मिली इसको पैंट की, तो बेल्ट नहीं मिल रही है, प्रोफेसर है, फॉरगेटफुल, थोड़ा सा बुढ़ा हो गया है। तो प्रिंसटन में पढ़ाता था, प्रिंसटन सिटी में कई दफे पुरानी टाई वो यहाँ बांध के चला जाता था। पूछा, प्रोफेसर व्हाट इज दिस? एंड आई कुडंट लोकेट माय टाई बाय माय बेल्ट। सच ए सिंपल मैन। एक लेटर पहुंचा उसको, ही वाज इन वियना, अमेरिका नहीं गया तब तक। लेटर का एड्रेस था आइंस्टाइन, यूरोप। लेटर मिल गया। आइंस्टाइन सेज, देखो कितनी एफिशिएंट पोस्टल सर्विस है यूरोप की, इतने छोटे से पते पे भी लेटर डिलीवर कर दिया। आइंस्टाइन यूरोप। उसको ये नहीं रिलाई हुआ कि ये पोस्टल वाले जो हैं एफिशिएंट नहीं है, ये एफिशिएंसी आइंस्टाइन की है, क्योंकि हर आदमी जानता है कि आइंस्टाइन कहां रहता है। दैट्स व्हाई लेटर रीच यू। इट इज नॉट द एफिशिएंसी ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ यूरोप। इतना सादा आदमी था और इतना हेल्पिंग था। Once he was going to participate in a paper and conference, तो टैक्सी ली, बात होने लगी। He said, I'm Einstein. He said, sir, I had a wish that I'd get myself educated. मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूंगा, लेकिन पढ़ नहीं पाया। मेरी भी इच्छा थी कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस में पेपर पेश करूं। तो उसने, कोई बात नहीं, आज तुम ही पेपर पेश करोगे। I have the script, just read it. इतना तो पढ़ लेते हो ना? उसने कहा। कहना, आज मैं नहीं, तुम करोगे। सो आइंस्टाइन ने थोड़ा सा देश बदला, उसको ले गए। एंड व्हेन टर्न केम, दैट मैन रेड द पेपर। आइंस्टाइन पेपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पढ़ा। उसके बाद क्वेश्चंस, बड़े बड़े साइंटिस्ट उठ गए, आई हैव अ क्वेश्चन। अब वो बेचारा आंसर कहां था? लुक हियर। Einstein got up and said, look, it is a simple question. Why to bother Einstein? Even I can answer this. And he came to the stage. He answered all the questions. This was Einstein. So somebody asked him, Professor, how do you teach? He says, I don't teach anything. मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूं। तो फिर करते क्या हो? क्लास में क्या करते हो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में? He says, I only tell my students as to how to ask right questions. सही सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सही सवाल क्या है, मैं उनको ये सिखाता हूं कि सही सवाल करना सीखो। अगर सही सवाल सीख जाओगे तो सब कुछ सीख जाओगे। Asking a right question is not an easy thing. न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा, हमारे ऊपर आम गिर जाते हैं? गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? धोया और खा लिया, बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा पका हुआ है। लेकिन न्यूटन न्यूटन था, उसने एप्पल तो उठाया, लेकिन सोचो ऊपर से गिरा क्यों? हम तो नहीं सोचते ना, पेड़ से आम क्यों गिरा? भाई पेड़ से तो आम गिरेंगे, आम पकेगा पेड़ से गिरेगा। ये एप्पल नीचे क्यों गिरा? अब वो धुन में लग गया था। अच्छा, देखते हैं भाई नीचे, ऊपर से नीचे चाहिए। उसने दर्जनों चीजें उठाई, ऊपर फेंकना शुरू की, हर एक नीचे आ गई। एक भी ऊपर नहीं गई, सारी नीचे आ गई। देन ही हैड अ हाइपोथेसिस कि हो सकता है जमीन के अंदर कोई खिंचाव हो। अर्थ अट्रैक्ट्स, दैट इज व्हाई थिंग्स कम डाउन। ये ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन की थ्योरी इज अ चांस डिस्कवरी। चांस डिस्कवरी है ना, उसने को प्लान नहीं किया था एप्पल गिरेगा, मैं ये करूंगा और ये होगा ना। इट्स अ चांस डिस्कवरी एंड ही बिकम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड बिकॉज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। उसको सवाल करना आता था, क्यों, व्हाई। So Einstein says, I teach my student how to ask the right questions and ask them to find the right answers. फिर कहता हूं उसका जवाब ढूंढो। They will search for it. Sometimes they fail. Then I help them.
फिर उनकी मदद करता हूं कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। दिस इज हाउ आई टीच। आप समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट मीनिंगफुल टीचिंग इज। टीचिंग डज नॉट मीन दैट आई mug up certain things and then present before you. One-sided presentation of second information that I have collected in books. वो teaching नहीं है. So you must ensure that you participate. Participate से आपका इंटरेस्ट फ्लैग नहीं होगा, आप बोर नहीं होंगे, आपके सर के ऊपर नहीं जाएगा। ये नहीं इधर से सुनो इधर से निकाल दिया, ये नहीं होगा। फिर आप हर चीज क्लासरूम में समझेंगे। And once you receive it, absorb it, then it shall be permanently yours. फिर वो permanently आपकी हो जाएगी, आप उसको भूलेंगे नहीं। आप समझ गए? This is another point that you must keep in mind. Now, another important thing that the computer age, आपका communication बहुत poor है। Communication English और even पंजाबी, सबसे ज्यादा नकल पंजाबी में होती है। पंजाबी पेपर में बच्चे समझते पंजाबी तो घर की खेती है, हम जानते हैं, उनको पंजाबी नहीं आती, वहां नकल करते हैं। एनीवे, योर कम्युनिकेशन इज स्पोकन एज वेल एज रिटन बाय एंड लार्ज, आई से बाय एंड लार्ज, नॉट इन एवरी केस, इज पुअर। पुअर इसलिए कि ना तो आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ना आप अच्छे ठीक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम देखते हो सास बहू, ठीक है, पिक्चर देखते हो लफंगे कमीने, यही पिक्चर देखते हो। अगर मैं आपसे पूछूं आपने अच्छी पिक्चर कौन सी देखी, तो शायद बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छी पिक्चर कभी देखी होगी, खास तौर से अच्छी अंग्रेजी पिक्चर है नहीं देखी। दैट्स वेस्ट योर टाइम। अच्छी किताबें नहीं पढ़ी, फिल्म मैगजीन जरूर पढ़ते हैं, किसका किससे क्या है जरूर पढ़ते हैं, लेकिन अच्छी किताबें नहीं पढ़ते। सो रीडिंग वेरी पुअर। आजकल किताबें बिकती नहीं है, एक तो कंप्यूटर आ गया, पीपल डोंट रीड, डोंट स्पेंड मनी ऑन बुक्स, सो रीडिंग वेरी पुअर। आप लोगों की किताब की पढ़ाई नहीं है। सेकेंड, यू हार्डली राइट एनीथिंग, आप लिखते भी नहीं हो, सिर्फ इम्तिहान में लिखते हो, बाकी तो मोबाइल पे लिखते हो, कंप्यूटर पे लिखते हो, जिसको मुझे पढ़ने में मुश्किल होती है क्योंकि आप लिखते हो कंप्यूटर लैंग्वेज। यू की जगह यू बना लिया, यही करते हो। अब मुझे देखने लगता है भाई ये यू स्टैंड्स फॉर यू, YOU, शॉर्टकट हो रहा है कंप्यूटर लैंग्वेज। सो यू हार्डली राइट द लिटिल लैंग्वेज, यू राइट कंप्यूटर लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर्स, you hardly put your pen on the paper. So communication poor. As a consequence, subject आता है, लेकिन आप ठीक से communicate नहीं कर सकते। You cannot write well. Grammar mistakes हैं, wrong words हैं, syntax correct नहीं है। You cannot convey what you want to. And legal language is a very technical language. Law एक बड़ा technical subject है, इसकी लैंग्वेज भी टेक्निकल। अनलेस यू द राइट वर्ड्स एंड राइट दैट लीगल लैंग्वेज, योर आंसर वुड नॉट मेक द एग्जामिनर सेटिस्फाइड, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्या करोगे? रिपीटेटिव होगे, बार बार वही लिखोगे, इररिलेवेंट लिखोगे, सवाल समझोगे नहीं, बगैर समझे लिखना शुरू कर दिया। सो टू टाइड ओवर दैट प्रॉब्लम, वी हैव an alternative. During the course of study, pick up certain questions. किसी पेपर से कोई सवाल उठा लीजिए, write your answer. घर पे बैठ के लिखिए, सेप बैठ। आपने 5 साल का जवाब 3 घंटे घड़ी देख के कर लिया और उस कॉपी को घर पर रख दीजिए। Read your answers after 5 days. 5 दिन के बाद अपने आंसर पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहां आपने इररिलेवेंट लिखा है, कहां आपने रेलेवेंट लिखा है, कहां आपकी डेफिशिएंसी है, कौन सा आपने केस नहीं दिया, क्या चीज आपने छोड़ दी, सवाल का जवाब ठीक दिया है, सवाल का जवाब ठीक नहीं दिया।
ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये जरूर करिए, बिकॉज व्हेन यू राइट इन द एग्जामिनेशन हॉल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे में आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। ना आपकी स्पीड है, ना आपकी प्लानिंग है, ना आपका कोऑर्डिनेशन है, ना आपको आदत है। तो ये प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। उसका सॉल्यूशन हम भी आपको देंगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम विल गिव टेस्ट पेपर्स। हम आपके क्लासरूम में टेस्ट पेपर देंगे। आपने अटेम्प्ट किया जैसे एग्जाम करते हो। व्हेन यू इवैल्यूएट, तो हम जो इवैल्यूएट करते हैं आपके आंसर, उसके अंदर आपको एक पेज पे 20 लाल निशान मिलेंगे। रीड ईच वर्ड दैट यू राइट। आपको बताया जाएगा आपकी ग्रामर गलत है, आपका पंक्चुएशन गलत है, आप चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत है, आपकी स्पेलिंग गलत है, आपका सेंटेंस ठीक नहीं है, आपने जो लिखा इररिलेवेंट है, आपने सवाल समझा नहीं है, उसके बगैर ही जवाब लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि जो आपको आता है वो लिख दिया आपने, लेकिन ये से पूछा क्या गया है। सो वी विल पुट यू दैट प्रैक्टिस so that when you go for the examination you are ready and you can attempt your entire paper to your satisfaction with good time management। आप समझ गए? 3 घंटे में आप सारे, अब आप करते क्या हैं, एक सवाल का जवाब बहुत डिटेल दे दिया, बहुत बढ़िया लिखा आपने, 30 नंबर का सवाल है, आपको 16 मिल जाएंगे, आपको 15 मिल जाएंगे, अगर बहुत एक्सेलेंट लिखा है आपने, आउटस्टैंडिंग, मेटिकुलस। 2 सवाल छूट गए या 3 सेंट लिख पाए, टाइम ही नहीं है, तो आपके गए 40 नंबर। यहां आपको एडवांटेज मिला 3 नंबर का, वहां आपके पूरे साफ हो गए 40 नंबर। यू कैन सक्सीड। सो एंश्योर दैट यू डिवोट रीजनेबल टाइम टू ऑल द क्वेश्चंस। ये नहीं कि हैवीली वेटेड नहीं होना चाहिए, एक सवाल बहुत बढ़िया बाकी सवाल छूट गए, ये नहीं होना चाहिए। Time management in the exam hall also very important. That you will learn if you go through practical test papers. इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये आप जरूर करिए, इससे आपकी लैंग्वेज सुधरेगी, इससे आपको पता चलेगा रेलेवेंट क्या है, इररेलेवेंट क्या है, इसको आप पता चलेगा कितने टाइम आप कितना सवाल कैसे पूरा करेंगे। All this you will learn, right? So this is another thing that you must do. Now then, यूजुअल प्रॉब्लम इज कि आप कहते हैं साहब हमें सेक्शन याद नहीं रहते, हमें केस याद नहीं रहते। वेल, नो एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि आप हर एक्ट के हर सेक्शन की लैंग्वेज आपको याद हो, या सेक्शन डज नॉट मैटर। नो वन एक्सपेक्ट्स यू रिमेंबर ईच एंड एवरी सेक्शन एंड क्लॉज। ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर, उनको भी याद नहीं। एग्जामिनर हिमसेल्फ डज नॉट नो इट। सो इफ यू डोंट नो, डोंट राइट रॉन्ग सेक्शन एंड रॉन्ग क्लॉज। अंदाज से मत लिखिए, कभी भी सवाल का जवाब अंदाज से मत दीजिए, गैस मत मारिए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग है, 5 नंबर मिले, 3 नंबर कट गए। सो नेवर ट्राई टू आंसर बाय गैस वर्क। ये इम्तिहान में कभी मत करिए। जो नहीं आता है नहीं आता, छोड़ दीजिए उसको। इफ यू डोंट रिकॉल सेक्शन नंबर, डोंट राइट, क्योंकि अगर रॉन्ग लिखोगे तो वहां क्रॉस लग जाएगी, एंड क्रॉस मीन्स यू अनॉय द एग्जामिनर। तो सेक्शन मत लिखिए। व्हाट इंपॉर्टेंट इज, डू यू नो द प्रिंसिपल ऑफ लॉ? क्या आपको प्रोविजन का पता है? राइट द प्रोविजन, राइट द प्रिंसिपल, राइट द रूल। सेक्शन नंबर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आपको ठीक याद है, जरूर लिखिए। आपको ठीक याद नहीं है तो मत लिखिए, उससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। गलत लिखोगे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दिस यू अटेंड शो एग्जामिनेशन हॉल। देन व्हाट यू समटाइम डू, देयर इज अ प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम पढ़ी, अरे ये तो उस केस का प्रॉब्लम है, ये तो उस केस में डिसाइड किया था। यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर, यस this is what was decided in such and such case, and facts of this problem match with the facts of that case.
नेवर डू इट। ये तुक्का है, चांस है। राइट योर आंसर। आपको पता है ये केस लिया गया है, उसी केस के फैक्ट्स हैं। बाद में एट द एंड ऑफ द आंसर लिख दीजिए इंसिडेंटली facts of this problem correspond with the fact of such an important decided case। उस केस का नाम लिख दीजिए। This will impress the examiner कि आपने सवाल का जवाब दिया with reasons। You have mentioned grounds. This is what they want to know. You know how to apply the law. You know how to call out the answer. You have given the right answer। और आपको केस ही पता है, आपने केस भी दे दिया बाद में, तो इससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। दिस इज अनदर टेक्निक विच यू मस्ट फॉलो। ये मत करिए कि जहां तुक्का लग गया, हाथ लग गया, बस इस केस का ये तो आंसर है ही ऑलरेडी, मुझे क्या करना है। नो, देन यू विल नॉट स्कोर वेल। दैट्स अनदर थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। नाउ इफ यू कीप दीज फ्यू पॉइंट्स, then I think your success is more than assured। As far as textbooks are concerned, हर सब्जेक्ट की एक टेक्स्ट बुक ले लीजिए, ज्यादा की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे आप। बट देन टेक्स्ट बुक शुड बी गुड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा साहब वो लॉ ऑफ एविडेंस में जो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें बाटुकलाल झाटुकलाल की किताब बहुत अच्छी है ना, को बाटुक बुटुक जो, उसको फेंक दीजिए। सेलेक्ट वन गुड बुक वे टीचर सजेस्ट यू, उसी को पढ़िए। और वो तब पढ़िए जहां पे यू आर स्टक अप, जस्ट टू सीक फर्दर क्लैरिफिकेशन। अदरवाइज योर बेयर एक्ट supplemented by class lectures and the case law that we give in the classroom here। वो केस लॉ और क्लास डिस्कशन प्लस बेयर एक्ट विल सफाइस। आपको किताब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किताब इसलिए खरीदिए कि जहां आपको कोई डाउट है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, वहां किताब खोल लीजिए। एंड थर्ड रेट बुक्स, they sometimes mislead you, give wrong information। तो करते क्या, हिंदुस्तानी क्या करता है, जो हिंदुस्तानी ऑथर है वो 4 किताब रखता है, थोड़ा सा यहां से टीपा, थोड़ा यहां से टीपा, और एक जगह रख दिया। He does not understand, वो नहीं पढ़ रहा, उसको खुद नहीं आता सब्जेक्ट है, लेकिन किताब लिखती। Such a book will confuse you more, so never pick up such a book। ये एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। What books you read, your subject teacher will tell। आपके सब्जेक्ट टीचर बता देंगे। Like an evidence, there is a book by मुनीर। ये जस्टिस थे मुनीर, लाहौर हाई कोर्ट के। इसकी लॉ ऑफ एविडेंस किताब दुनिया में सबसे बढ़िया है, हिंदुस्तानी लॉ पे सबसे बढ़िया किताब उसी की है, मुनीर, MUNIR। आजकल तो मुनीर चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं आर्मी के, उसमें पाकिस्तान में, वो मुनीर नहीं है। जस्टिस मुनीर, ये लाहौर हाई कोर्ट बहुत पुराने जमाने में, पार्टीशन पहले की बात है। इसकी किताब 2 है, एक तो है ईस्टर्न एडिशन, ईस्टर्न एडिशन है वो खरीद लीजिए, लेटेस्ट ईस्टर्न एडिशन। दूसरी किताब है इन लार्जर 2 वॉल्यूम में है, वो आपको जरूरत नहीं, दैट इज एग्जॉस्टेड। लॉ ऑफ एविडेंस जो ईस्टर्न एडिशन को खरीदिए, लॉ ऑफ एविडेंस 2 वॉल्यूम उसको मत खरीदिए। दिस शुड बी योर ओनली टेक्स्ट बुक, नो अदर टेक्स्ट बुक इज नीडेड बाय यू, और आपको जरूरत नहीं है। मैं एविडेंस की बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स में आपके टीचर आपको बताएंगे कि कौन सी किताब को पढ़नी है। अब जो 5 मिनट हमारे पास हैं उसमें आई विल टेक योर क्वेश्चंस। आपके जो भी सवाल अपनी पढ़ाई के बारे में है वो यू आर वेलकम टू आस्क। आप जब पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, आपको किस किस्म की प्रॉब्लम आती है, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम डू यू फील?
क्योंकि इम्तहान ही पास कर लिया, लॉ आपने कर लिया, लॉ ग्रेजुएट हो गए हो, बहुत तैयारी कर रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है? यूजुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू एनकाउंटर? या आप ये फील करते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, बाकी मेरे अंदर ठीक है, मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं, मैं अंग्रेजी ठीक नहीं लिख सकता, और ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर नहीं है, अगर अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा तो नहीं अंग्रेजी पढ़ोगे। बहुत बच्चे रूरल बैकग्राउंड के, उनकी गलती नहीं है, उनको अंग्रेजी पढ़ाई नहीं अच्छी तरह से। जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो उनको क्या सिखाएंगे वो? अब मैं बना डायरेक्टर जुडिशल एकेडमी, आप जब यूएसएफ बन जाएंगे तो आप ट्रेनिंग करेंगे 1 साल के लिए, तो फिर नेक्स्ट मुलाकात वहां से होगी। When डायरेक्टर जुडिशल एकेडमी, जस्टिस जनरल सेंड मी ए जजमेंट, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था। तो अब ये जज महाराज हैं, यहीं से पास होके गए हैं, जुडिशल एकेडमी में निकले, ट्रेनिंग भी हुई है। सो व्हाट आई फाउंड के इनमें से 80% जो अफसर को सेलेक्ट हो गए अंग्रेजी नहीं आती, ये अंग्रेजी नहीं लिख सकते। आई आस रिटायर्ड प्रिंसिपल वाईपीएस के साहब आप आइए, इनको कुछ लेक्चर दीजिए, इनको कम से कम थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा दीजिए। उसने कहा प्रो साहब इट इज टू लेट इन द डे, कि इनको इससे भी अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जाएगी। उसने कहा मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, इनको थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह बोला जाता है, किस तरह वोकैबुलरी इंप्रूव की जाती है, किस तरह सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो खैर उसने की, तो पहली दफा मैंने अंग्रेजी भी इंट्रोड्यूस की जुडिस ऑफिसर के लिए, तो अंग्रेजी नहीं आती थी। और इसका मुझे एक्सपीरियंस क्या है, जस्टिस सिंघवी और द प्यूनी जज है, लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट में गए, वो मेरे पुराने स्टूडेंट थे। ही आस्क्ड मी प्रो साहब आप, जब ये स्कैंडल हुआ ना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सिद्धू का, तो देन हाई कोर्ट टुक ओवर, एग्जाम उन्होंने किया, जस्टिस सिंघवी वाज कंडक्टिंग इट। ही सेड गुरुजी एक पेपर सेट कर दीजिए जुडिशरी का अंग्रेजी का। आई सेड सिंघवी साहब मैंने आज तक कोई पेपर नहीं सेट किया, ना जुडिशरी किया, ना आईएएस का किया, ना पीसीएस का किया। रीजन, अगर कल को पेपर लेकर लीक हो गया आई विल रिस्पॉन्सिबल। तो मुझे अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है, वह मुकाबले आपके 1-2 हज़ार रुपया मुझे देंगे, आई डोंट नीड दैट। ही सेड नहीं हो तो आपको करना ही पड़ेगा। नो ही वाज माय ओल्ड स्टूडेंट, तो मुझे अंग्रेजी का पेपर सेट करना पड़ा। नमाज पढ़ते पढ़ते पूरी नमाज पल्ले पड़ गई, अब वो पेपर भी जांचे। जब पेपर मैंने किए तो रिजल्ट था 9%, ओनली 9% कैंडिडेट्स कुड गेट क्वालिफाइंग मार्क्स, सिर्फ 9%, 100 बच्चों में से 9%। आ रहेगा जज सिंघवी, जज सिंघवी रिजल्ट इन 9%, you won't get adequate number of candidates, आपकी तो वैकेंसी नहीं भरेंगे, तो शुड आई रेज, रिजल्ट को थोड़ा और इंप्रूव कर दूं? उसने कहा नो, लेट इट बी 9%। उस साल सारी जॉब नहीं भरी गई, क्योंकि अंग्रेजी में ही मेजॉरिटी फेल हो गए। आप समझ रहे हैं? सो दिस इज हाउ इट हैपेंस दैट अंग्रेजी आपको ही नहीं, अंग्रेजी जो सेलेक्ट हो उनको भी नहीं आती है। सो जस्टिस जिंदल सेंट मी ए जजमेंट बाय जुडिशियल ऑफिसर, जिसमें लिखा हुआ था दिस मैन, दिस पर्सन हैड नो नॉन सोर्स ऑफ लवलीहुड। उसको लाइवलीहुड और लवलीहुड इन दोनों में फर्क पता नहीं था। बड़े सिंपल वर्ड है, लाइवलीहुड सोर्स ऑफ लिविंग, वो लाइवलीहुड लिखता लवलीहुड। उसने कहा ये जो अफसर आप ट्रेन कर रहे हैं ना, ये इनको पढ़ के बताइए कि जजमेंट तुम ये लिखते हो, दिस इज व्हाट यू राइट, दिस व्हाट इन इंग्लिश यू लाइक। It was then that I introduced teaching of English in the Judicial Academy. मेरे आने के बाद वो प्रैक्टिस फिर डिसकंटिन्यू हो गई। I could tell the Board of Governors they have to be taught English, they know their way out. अब वो जो दूसरे डायरेक्टर साहब मेरे बाद आए, उन्होंने कहा साहब ये कोर्स यही पूरा नहीं होता तो अंग्रेजी कहां से पढ़ाएंगे, तो अंग्रेजी बंद हो गई।
So ensure that your communication is also practiced, और ये प्रैक्टिस ही आएगा. So अगर आपको कोई सवाल पूछे, otherwise we close it here, and I wish you all the best. So as I say, pull up your socks, prepare, and be successful. That's all. God bless you all. You are currently the only person in this conference.